Hello and welcome back everyone. Today we are going to learn how to calculate heart rate of any ECG strip. So far we have already discussed the normal duration and the normal speed of the EKG paper and what this EKG paper is comprised of. This these small squares and a large square and these wave-like patterns and what does each thing signifies. To proceed with the calculation of the heart rate, we are going to take a quick recap of the normal values. As you can see, this one small square measures 1 millimeter and this one large square is comprised of five such small squares. 1, 2, 3, 4, 5. So 1 millimeter into 5 gives us a count of 5 millimeter. So one large square is of length 5 millimeter. So we have three main methods to calculate the heart rate. First being the large square method, second being the small square method, and third being the 6-second rule. And the 6-second rule is basically usable for every these two previous methods and when we get the irregular pattern. So in some cases of arrhythmias, tachycardias, bradycardias, etc. Heartbeats are calculated over a period of 1 minute, that is 60 seconds. That is why we have beat per minute. And the normal speed of the EKG paper is 25 millimeter per second. जिसका मतलब है कि 25 small squares passes in 1 second. 25 स्मॉल स्क्वायर यानी कि 5 बड़े स्क्वायर, क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर का लेंथ कितना रहता है 1 मिलीमीटर और एक लार्ज स्क्वायर का 5 मिलीमीटर. दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू बी ब्रश्ड अप ऑन अ रेगुलर बेसिस टू गेट अ क्विक ग्रास्प in future. So time taken for one small square is 0.04 seconds. This is another fact to be remembered, and this can be calculated by a retrospective calculation of this. Okay, so 0.04 second time लगता है एक small square को. These are the basic rules to be learned in the first को, ताकि इससे आगे की calculation आसान हो जाएगी. अब 0.04 सेकंड बस याद रखना है. 0.04 सेकंड अगर एक small square को लग गया तो बड़े square को कितना लगेगा 0.04 into 5, that is 0.20 seconds for one large square. ओके, एक स्मॉल स्क्वायर को 0.04 सेकंड लगा, एक लार्ज स्क्वायर को 0.20 सेकंड लगा पास होने में. ठीक है, अब जो हमारा कैलकुलेशन था सबसे ऊपर क्या था कि एक सेकंड में, पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं. एक सेकंड में 25 मिलीमीटर पर सेकंड यानी कि 25 स्मॉल स्क्वायर निकल जाते हैं और 5 बड़े स्क्वायर निकल जाते हैं. अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द स्मॉल स्क्वायर एंड दिस इज द बिगर स्क्वायर्स. ठीक है, अब हमें देखना है 1 मिनट का. तो multiplying both, this being the LHS and this being the RHS, both sides with 60, क्योंकि 60 seconds का निकालना है. 1 second into 60 seconds gives us 1 minute. 1 मिनट का निकालना है तो यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई करा. 1 into 60, this is 60 seconds and this is 25 into 60. बोथ साइड्स को RHS में भी LHS में भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो gives us around 1500. यानी एक सेकंड में कितने स्क्वायर्स निकल चुके होंगे उसमें 1500 स्मॉल स्क्वायर्स. And how many squares, how many last squares will be passed on in 1 minute? 300, because 5 into 60. एक सेकंड में, एक मिनट में, sorry, not 1 second, in 1 minute. In 1 minute, 1500 small squares would be passed on. In 1 minute, 300 large squares would be passed on. यहाँ पे 60 से multiply कर दिया. So now, keeping these things in mind, इसको लास्ट में सम अप कर देते हैं. यहाँ पे 1 मिनट में कितने स्मॉल स्क्वायर्स पास हो गए 1500 small squares and 300 large squares. And from this, the funda is over. अब यहाँ पे हमें बस QRS complexes देखने हैं और R waves देखनी है. R waves के बीच के squares गिन लेने हैं, square big squares और large square. When we have to consider count the large squares, like let me just put this. Okay. Okay, so we have to calculate the large squares. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 large squares between 2 R waves. So अब लार्ज स्क्वायर कितने पास हो रहे थे एक मिनट में यहाँ पे 300. तो न्यूमरेटर क्या रहेगा, न्यूमरेटर वुड बी 300 डिवाइडेड बाय लार्ज स्क्वायर कितने निकले इसमें से 5. दिस इज 60 बीट्स पर मिनट. और यहीं पे अगर हमें उसका देखना है
स्मॉल स्क्वायर का, तो 5, तो डिनोमिनेटर रहेगा 5 × 5, क्योंकि जब स्मॉल स्क्वायर आ गए तो एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, तो 5 × 5, 1500 डिवाइडेड बाई 25, 5 से 5 बटा 300, 5, दिस इज अगेन 60 बीट्स पर मिनट। ओके, नाउ कैलकुलेट फॉर दिस वन। यहाँ पे कितनी हेवी लाइन्स हैं? एक दो, एक दो, तीन, चार। अब यहाँ पे 4 है, तो अगर लार्ज स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर रहेगा 300/4, 300/4 कितना हो गया? अराउंड 72 बीट्स पर मिनट समथिंग। और अगर इसी को स्मॉल स्क्वायर मेथड से करेंगे तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 1500, 4 × 5, 5 से ये कटा, तो 5 से ये कितना, यहीं पे वापस 300 आ जाएगा, सेम थिंग, 72 बीट्स पर मिनट। सो easy peasy। एंड फॉर दिस वी हैव, अब यहाँ पे कितनी हेवी लाइन्स है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पे 5 है, तो लास्ट स्क्वायर में 5, दिस इज अगेन 60 बीट्स पर मिनट। एंड फॉर फिफ्थ स्मॉल स्क्वायर मेथड we have 5 × 5, this is again 60 beats per minute। Now we have ventricular tachycardia over here। अब यहाँ पे लास्ट स्क्वायर कितने हैं, हैवी लाइन्स कितनी आ रही है? 2 आर वेव के बीच में, एक दो, सो वी हैव, अगर लास्ट स्क्वायर मेथड से जाएंगे तो 300/2, दिस इज 150 बीट्स पर मिनट। एंड स्मॉल स्क्वायर मेथड से 1500/2 × 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे? वही सेम थिंग, 300 ऊपर, 300/2, 150 बीट्स पर मिनट। ओके, द थिंग इज ओवर हियर, अब यहाँ पे हम ये मेथड भी लगा सकते हैं, 6 सेकेंड रूल वाला। अब 6 सेकेंड रूल क्या कहता है? 6 सेकेंड रूल का ये कहना है कि हमारी जो ईकेजी स्ट्रिप रहती है ना नॉर्मली, उसमें इंटरवल्स रहते हैं यहाँ पे ऐसा, फॉर एवरी 3 seconds वी हैव दिस पिंक स्टैंडर्ड लाइन सेट ऑन द टॉप ऑफ द ईकेजी पेपर। ठीक है, अब जब यहाँ पे बीट्स इरेगुलर रहेंगी किसी भी केस में, यहाँ पे तो इरेगुलर बीट्स का नहीं है, जो भी पैटर्न है वो रेगुलर ही है। तो एक इरेगुलर पैटर्न जब भी हमें मिलेगा, तो 6 सेकेंड × 10 seconds गिव्स अस 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट का डेटा मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे जितने भी आर वेव पैटर्न होंगे ना, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे 6 सेकेंड का स्टेप देख लेंगे। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे दो वो पैटर्न मिल गए ना, एक 3 सेकेंड पे एक ऊपर वाला मार्क होता है, तो यहाँ पे 6 सेकेंड की ये पूरी स्ट्रिप है, तो यहाँ पे आर पैटर्न निकाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो 6 × 10 करेंगे, कितने आर वेव पैटर्न थे इसमें? आर वेव की 6, तो 6 × 10 60 बीट्स पर मिनट। क्यों, इसका रूल कैसे निकला था? 6 सेकेंड रूल है, यहाँ पे स्ट्रिप्स लगी रहती है, ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन का सेट रहता है यहाँ पे 6 सेकेंड्स का, तो फिर 3 सेकेंड का रहता है, यहाँ पे 2 थे तो इसलिए 3 सेकेंड, 3 + 3 6 सेकेंड, 6 सेकेंड × 10 गिव्स अस डेटा ऑफ 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो 10 × नंबर ऑफ आर वेव्स, दिस इज 6, क्योंकि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट 60 बीट्स पर मिनट। ओके, सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे रेगुलर पैटर्न होगा, यहाँ पे हर किसी के बीच में कितनी रहेंगी, गेस करो। 300 डिवाइडेड बाय व्हाट गिव्स अस 60, 300 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स अस 60, तो यहाँ पे लास्ट स्क्वायर भी कितने मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। Without even seeing the ECG strip, we were able to calculate it just looking at the R waves। बिना इनको हेवी लाइंस को एक्चुअल काउंट करे, हमने 6 सेकेंड मेथड से देखते ही साथ ही बता दिया कि बीट्स पर मिनट कितनी थी, हार्ट रेट कितना था, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न देखा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6, और फिर आर वेव कैलकुलेट कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जितना भी आर वेव का पैटर्न आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 बीट्स पर मिनट। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।